guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, today we are up with the third episode. Oh my god. Oh my god. Here in this video we are up with the B1 doubts session. Yes guys, you heard right, all the B1 grammar doubts. If you're also having, then you can comment down below. Otherwise, from all your comments, from Instagram DM, or somehow I have collected all the doubts. My team has collected all the doubts just to make this video, so I hope it will be super duper helpful for you. So one student will be asking to another trainer and it is gonna be super duper hit. I hope you're gonna love it. And before starting, make sure to subscribe this channel, and in case you are looking forward to learn German language for exam preparation, brush up classes, anything, German Gyan is a one-stop solution. WhatsApp on this number and enroll with German Gyan. Let's start with the B1 doubt because I'm so excited. Let's start. Okay Shrishta, if you have any doubt related to B1 level, you can ask me now. Okay ma'am. How do you structure sentences with deshalb, deswegen and darum? Okay. So first thing, these are the synonyms. ठीक है? Whether you use deshalb, whether deswegen और darum, तीनों सेम है, तीनों के मीनिंग सेम होते हैं. सेकेंड, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, then your connector, then verb, subject and object. Means what you have to remember, कनेक्टर से पहले हाउसजात आएगा, बट कनेक्टर के बाद पहले वर्ब आएगा, देन योर सब्जेक्ट एंड देन योर ऑब्जेक्ट. ठीक है? ठीक है. सो नेक्स्ट आउट. या सेकेंड मैम, मतलब जो डबल कनेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखो डबल कनेक्टर्स होते हैं, यू कैन से nicht nur sondern auch, entweder oder. ठीक है, weder noch and zwar aber. These are the double connectors. ठीक है? When do I use the infinitive with so? Okay. So plus infinitive का क्या use है? Okay. See, if you are doing something, ठीक है, and you have a proper goal of doing that thing. For example, like you can say, if you are going to market and you are going because you want to purchase something, that means you have a seal. ठीक है, you have some aim for going to the market, so at that time you use umso. ठीक है, and जब हम so plus infinitive use करते हैं, so what we need to remember कि so के बाद verb आता है जो infinitive form में आएगा. ठीक है, that means you don't need to conjugate. so के बाद direct infinitive form में verb लिखो. ठीक है, next. Okay. How do you structure sentence using ये desto? ये desto. So your doubt is ये desto. ठीक है, first thing, ये desto help करता है to express a correlation between two variables. ठीक है, it means the more या फिर the less. ठीक है, means whenever you are using this connector, तो first thing what you need to remember कि comparative form use करना है adjectives की. ठीक है, for example, ये mehr wir lernen, desto besser sprechen wir. ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या adjective use करा, mehr एंड बेसर. ठीक है, ये दोनों कंपैरेटिव फॉर्म्स होते हैं. सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग ये डेस्टो, हमेशा इसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म सेकंड पोजीशन पर. यस, एंड वो भी कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ जोदास. सो जोदास जो होता है वो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रिजल्ट और अ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट यू यूज जो के साथ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, then you use das and you show the result clause. ठीक है, for example, die Prüfung war so schwierig, dass viele Schüler sie nicht bestanden haben. इसके अंदर जो das के बाद जो सेंटेंस लिखा है ना, वो तुम्हारा रिजल्ट क्लॉज है. बिकॉज अगर तुम्हें किसी चीज का रिजल्ट ले रहे कि जो एग्जाम था वो इतना हार्ड था कि कुछ बच्चे जो है वो उसे क्लियर नहीं कर पाए. ठीक है, सो जो das जब भी यूज होता है वो एक रिजल्ट बताता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट की रिलेटिव जार्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे, मतलब? ठीक है, देखो रिलेटिव जार्स के दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, एक होता है सिंगल कॉमा, एक होता है डबल कॉमा. ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कब फॉलो करते हैं, जब नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है. ठीक है, विच इज सिंगल कॉमा. जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट सेंटेंस, देन कॉमा, देन रिलेटिव प्रोनाउन,
रिमेनिंग सेंटेंस एंड एंड में जाता है वर्ड, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं? जो चीज कॉमन होती है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है डबल कॉमा, उसका हम कब यूज करते हैं? जब फर्स्ट सेंटेंस में नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है। तो डबल कॉमा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? नाउन, देन कॉमा, देन रिलेटिव प्रोनाउन, देन रिमेनिंग सेंटेंस, देन वर्ड, कॉमा, इन्फो अबाउट नाउन, ठीक है। अब फर्स्ट जो सिंगल कॉमा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका सेंटेंस देखो। पहले तुम्हारे पास दो सेंटेंसेस है, das ist der Mann, ist ehrlich, ठीक है। अब देखो पहले तुम्हें कॉमन चीजें निकालनी पड़ती है कि क्या चीज कॉमन है, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन हम उसी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? देयर मन, उसी के बारे में बात हो रही है सेकंड सेंटेंस में। तो अब हम क्या करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर देंगे, ठीक है। So the sentence is das ist der Mann, der ehrlich ist. अब यहाँ पर जो der यूज हुआ है ना, that is your relative pronoun, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखो, the second rule, das Kind spielt dort, es wohnt in der Schweiz. अब देखो again first you have to take the common thing. फर्स्ट सेंटेंस में किड की बात हो रही है और सेकंड सेंटेंस में उसी सेम पर्सन की बात हो रही है। दैट मीन्स एक चीज क्लियर है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो इस किड के लिए, ठीक है। सेकंड, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले नाउन आएगा, दैट इज दास किड, देन योर कॉमा, देन योर रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच इज दास। अब रिमेनिंग सेंटेंस लिखना है। रिमेनिंग सेंटेंस कौन सा? वो सेकंड वाला, इन देयर श्वाइस, देन अगेन वर्ड, then comma, then information about the person which is spielt dot. Clear? So this is the sentence structure. Okay. Next question. Adjective on an article की table and give one example. Okay, जो adjective ending का table होता है on a article में, that table is on the screen, ठीक है। Now वो table होता है that you need to use whenever you are framing a sentence without using any article, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्मॉल बैग। अब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसको व्हेन यू विल ट्रांसलेट इन जर्मन तो सेंटेंस क्या बनेगा? Wir haben kleine Tasche. Why? Because when you will see the table, accusative के फेमिनिन में एडजेक्टिव एंडिंग इज ई, तो उस क्लाइन पर एंडिंग लग गई है ई, क्लाइन, ठीक है। So that's how you frame a sentence. ऐसे एंडिंग्स लगती है एडजेक्टिव्स की, ठीक है। बट क्या रूल रहेगा? When you are not using any article in your sentence, ठीक है। ओके नेक्स्ट। हाँ, और सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके सी, बहुत बार चांसेस होते हैं, लाइक मोस्टली देयर आर चांसेस कि सेंटेंस के अंदर ना दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है नाउन, वर्ड, दाटिव ऑब्जेक्ट एंड आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर कब होगा? जब यू आर यूजिंग नाउन, ठीक है। जब तुम्हारे दोनों ऑब्जेक्ट्स नाउन है, ठीक है, उस टाइम तुम यूज करोगी नाउन, दैट योर सब्जेक्ट, देन योर वर्ड। दाटिव ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्सन और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट अ थिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस होता है जब दोनों सेंटेंसेस लाइक दोनों ऑब्जेक्ट्स नाउन नहीं है बट प्रोनाउन है, ठीक है। तो उस टाइम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, देन योर वर्ड, देन पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा एंड उसके बाद दाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्या चीज याद रखनी है? दाटिव ऑब्जेक्ट ऑलवेज अ पर्सन, ठीक है। तो जो भी प्रोनाउंस यूज करोगी याद रखना कि दाटिव के लिए दाटिव विल बी अ पर्सन तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा, आकुजाटिव विल बी अ थिंग तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा, ठीक। ओके, सो योर डाउट इज एंड डिक्लिनेशन, ठीक है। तो एंड डिक्लिनेशन जो होता है, फर्स्ट चीज कि वो वीक नाउन्स होते हैं। एंड वीक नाउन्स कौन से? जो मस्कुलिन होते हैं, बट सारे मस्कुलिन नाउन्स वीक नाउन नहीं होते हैं, उसकी एक लिस्ट होती है। एंड हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा मस्कुलिन नाउन वीक नाउन है या नहीं है, उसका एक लाइक यू कैन से एक ट्रिक होता है कि जो भी नाउन है अगर उसका प्लूरल एन या ई एन से एंड हो रहा है तो वो वीक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल देयर स्टूडेंट, देयर स्टूडेंट का जो प्लूरल होता है वो होता है दी स्टूडेंटन, तो उसका जो एंड में जो प्लूरल है वो ई एन है, दैट मीन्स वो वीक नाउन है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी देयर पासिएंट, अगर उसका प्लूरल देखोगे तो प्लूरल विल बी दी पासिएंटन, अगेन पासिएंटन में एंडिंग क्या है? ई एन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज कि कौन सा मस्कुलिन नाउन वीक नाउन है या नहीं है। अगर उसका प्लूरल एंड हो रहा है ई एन से
दैट मीन्स इट्स अ वीक नाउन, ठीक है। नाउ इनकी एंडिंग्स कब लगती है, व्हेन यू आर यूजिंग दीज नाउन्स एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट्स में कभी भी एंडिंग मत लगाना, बट जब भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं एट दैट टाइम दे विल टेक द एंडिंग, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट? यस मैम, लास्ट मतलब वन वर्ड। ओके, हाँ, B1 के कोई बेस्ट बुक बताओ फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। ओके, सो देयर इज अ बुक इन द मार्केट विच इज सर्टिफिकेट बेआइंस, ठीक है। उसके अंदर 15 मोडाल पेपर्स होते हैं, उन मोडाल्स पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हर लाइक स्पीकिंग में यू विल गेट 2 टॉपिक्स, ठीक है, एंड राइटिंग में अगेन यू विल गेट 2 टॉपिक्स हर मोडाल पेपर में। तो वो पूरा जो बुक है वो गोएथे के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम, ठीक है। ओके, सो एनी अदर डाउट? नो मैम। Okay, so keep learning German with German Gyan. Okay. So guys, I hope now your B1 grammar doubts are clear. In case you have any doubt, you can comment down below. You can reach me on my Instagram page or LinkedIn or anywhere. German Gyan is there to help you 24/7. Thank you so much for watching. Another 4th episode is coming with the B2 doubts. In case you are having B2 doubts, you can comment down below. We will be taking your doubt. We'll catch you on the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care. Cheers.